Today we are going to begin with the lesson number 12 of your class 5 EVS, that is traditional games. So let's begin with this lesson. We have learned about the different games played at home, in school and some other means of recreation. So in this chapter you will learn about the traditional games played in our country. जो traditional games खेले जाते हैं और हमारी country में आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So we have read about many sports and games that are played all over the world. हमने बहुत सारे sports के बारे में पढ़ा है जो पूरे world में खेले जाते हैं. There are also common traditional games. कुछ traditional games भी हैं हमारे which have been either lost or have undergone changes with the time. Some of them are still played in different parts of the world like Kho-Kho, Kabaddi, boat racing, bullfighting, archery and martial arts and martial arts are few examples. ये क्या है, कुछ वर्ल्ड के पार्ट्स में खेले जाते हैं. Now traditional games in India. इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स क्या है? कबड्डी. कबड्डी इज वेरी सिंपल एंड एंशिएंट गेम. बहुत ज्यादा सिंपल और एंशिएंट गेम है कबड्डी. इट इज अ गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स के बीच में खेला जाता है. दैट इज 7 to 9 प्लेयर्स ईच. हर टीम में 7 से 9 प्लेयर्स होते हैं. दिस गेम इज प्लेड ऑन अ लेवल्ड सॉफ्ट ग्राउंड. कहाँ पे खेला जाता है? एकदम लेवल्ड और सॉफ्ट ग्राउंड पे खेला जाता है. And requires both strength and skill. और दोनों को required होते हैं स्किल्स की और स्ट्रेंथ की. So kabaddi is very popular, known as Guddo in Sri Lanka. गुड्डो कहते हैं कबड्डी को श्रीलंका में. हुदुदू in Maharashtra, Hadudu both in Bengal and Bangladesh, and Dodo in Nepal. नेपाल में डोडो कहते हैं. Various championships and tournaments are held internationally. बहुत सारे चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स होते हैं इंटरनेशनली. कबड्डी इज बीइंग प्रमोटेड इन अ बिग वे थ्रू प्रो कबड्डी लीग एंड वर्ल्ड कबड्डी लीग व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2014. नाउ खो-खो. खो-खो इज पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम प्लेड बाय प्लेयर्स. खो-खो क्या है? पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम है जो कौन खेलता है? प्लेयर्स खेलते हैं. प्लेयर्स ऑफ बोथ द जेंडर्स, दोनों जेंडर्स के प्लेयर्स खेलते हैं खो-खो. It is one of the most popular sports in Maharashtra. बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है खो-खो महाराष्ट्र में. इसमें गर्ल्स भी खेल सकते हैं, बॉयज भी एक साथ खेल सकते हैं. The word खो-खो is derived from the Sanskrit word siu, which means get up and go. siu का मतलब होता है get up and go. In fact, the word kho in Marathi means go and chase. मराठी में इसका मतलब होता है go and chase. It demands strength, ability, physical fitness and stamina. क्या होनी चाहिए? Physical ability होनी चाहिए अच्छी, physical fitness होनी चाहिए, strength होनी चाहिए, stamina. Now chess. Let's talk about chess. Chess क्या है हमारा? It is an ancient game that was played in olden days to divide land. क्यों खेला जाता? लैंड को डिवाइड करने के लिए खेला जाता ओल्डन डेज में ये. Among the clans, it was known as chaturanga, which was later known as शतरंज in Persian. इसको क्या कहते थे? चतुरंगा कहते थे और फिर धीरे धीरे इसको हम शतरंज कहने लगे पर्शियन में. खो-खो was once called रथेरा in Maharashtra. खो-खो को एक बार रथेरा भी कहते थे महाराष्ट्र में, because earlier it was played on रथ, chariots, क्योंकि पहले रथ पे खेला जाता था, chariots पे. Now let's talk about archery. Archery has been used for self defense and hunting since ancient times. किस लिए यूज होता है? हंटिंग के लिए यूज होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता है. एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है. द बो एंड एरो among the earliest weapons of warfare are were made from special bamboo. किससे बनते हैं? ये हमारे एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है. ये अर्लीस्ट वेपन्स है हमारे वॉरफेयर्स में खेले जाते हैं. किससे बनते थे? स्पेशल बैम्बू से बनते हैं. The sports was played less over time but was included in 1972 Olympic Games. कम खेला गया टाइम तक, बट ये 1972 के ओलंपिक गेम्स में था. लिम्बाराम, संजीव कुमार सिंह एंड दीपिका कुमारी एंड डोलो बनर्जी are some archers of India. He is Dolo Banerjee. It is the picture of Dolo Banerjee. Now wrestling. It is known as कुश्ती in India. Wrestling क्या है? Wrestling को हम कुश्ती कहते हैं हमारे इंडिया में. It is one of the oldest sports. ये क्या है? बहुत पुराना oldest sport है. The wrestlers are known as मलाज एंड पहलवान. कैसे क्या कहते हैं? मलाज कहते हैं या पहलवान कहते हैं. रेसलिंग इज प्लेड ऑन अ प्लेग्राउंड कॉल्ड अखाड़ा. एक प्लेग्राउंड में खेली जाती है रेसलिंग. उस प्लेग्राउंड को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं. रेसलिंग वाज नेग्लेक्टेड अर्लियर बट गेन इंपॉर्टेंस लेटर. रेसलिंग को पहले नेग्लेक्ट कर दिया था अर्लियर, बट आजकल उसने
इंपॉर्टेंस गेन कर लिया। दिस इज अ पिक्चर ऑफ दीपक पूनिया। इट इज पॉपुलर इन द नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस है आपकी कुश्ती। So Aman Shehrawat, Anshu Malik and Deepak Punia made India proud by winning the gold medal in Commonwealth Games. इन्होंने क्या करा था, इंडिया को प्राउड फील कराया था गोल्ड मेडल जीत के, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में, held in Trinidad and Tobago in 2023. बोट रेसेस ऑफ केरला आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम। जो बोट रेसेस होती है केरला में कब होती है, ओनम के टाइम पे होती है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन ऑगस्ट सितंबर, कब होता है, अगस्त में होता है और सितंबर में होता है इनका हार्वेस्ट फेस्टिवल। दिस इज द लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। ये टीम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। इट इज अराउंड 150 मैन इन वन टीम। एक टीम में कम से कम 150 लोग होते हैं, 150 मैन होते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू केरला टू विटनेस द इवेंट। पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट आ जाते हैं इंडिया केरला में विटनेस करने के लिए इस इवेंट को। दिस इज द पिक्चर ऑफ बोट रेसिंग। Now, let's talk about acrobatics. It is performed by acrobats, also known as nuts. Acrobats perform करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, nuts कहते हैं। They include men, women and children. इसमें क्या होता है, men भी करते हैं, women भी करते हैं, children भी perform करते हैं। They show various kinds of gymnastics. ये बहुत सारे टाइप की gymnastics शो करते हैं। आपने देखा होगा गर्ल्स को, बॉयज को, रोप, बच्चों को जो चिल्ड्रन होते हैं रोप्स पे मूव करते हैं इजिली, such as child walking on a tight rope or balancing with the help of a pole. Nuts perform one on the roadside and survive on the money which onlookers give them. उस पे कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, रोड साइड पे परफॉर्म करते हैं, कहीं चौराहे पे, कहीं भी रोड पे। सो इन्हें कौन मनी देता है, जो उनको देख रहे होते हैं वो लोग इनको मनी देते हैं। Martial arts is a sport where performers use their face and body as a medium to perform. Martial arts क्या है, ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जहाँ पे परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स है, जहाँ पे परफॉर्मर्स क्या यूज करते हैं, फेस और बॉडी को यूज करते हैं अपने मीडियम टू परफॉर्म। इट इज स्पोर्ट्स ऑफ फिटनेस, सेल्फ डिफेंस एंड फाइटिंग स्किल। किसका स्पोर्ट्स है, फिटनेस का, सेल्फ डिफेंस का और फाइटिंग स्किल्स का। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ये डेवलप करता है कैरेक्टर्स। द टर्म मार्शल आर्ट्स मींस आर्ट कंसर्न विद द वेगिंग ऑफ वॉर। इसका मतलब होता है जो आर्ट कंसर्न है किससे, वेगिंग ऑफ वॉर से। People who practice martial arts are referred to as martial artists. जो people martial arts खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, martial artists कहते हैं। Early Indian martial arts included punching, kicking, wrestling, iron dance and playing with bow and arrow. So थोड़ा is martial art from हिमाचल प्रदेश। थोड़ा क्या है, martial art है जो कहाँ खेला जाता है, हिमाचल प्रदेश में। So pole gymnastics और Malakhamb. It is a traditional Indian sport in which a gymnast performs poses. इसमें क्या होता है, जिमनास्ट क्या परफॉर्म करता है, poses परफॉर्म करता है। And feats while hanging from a vertical wooden pole. कहाँ से, एक vertical wooden pole से hang होके। The word Malakhamb is composed of mala. किससे composed है, word mala से composed है, meaning gymnastics and kham meaning pole. Meaning जो mala का मतलब होता है जिमनास्टिक और kham का meaning होता है pole. So changing forms of local games. कैसे चेंज हो रही है फॉर्म्स लोकल गेम्स की। With changing time, the nature of local games have changed. टाइम चेंज हो रहा है तो नेचर भी हो रहा है हमारे लोकल गेम्स का, वो भी चेंज हो जाता है। Earlier collective और team games were played. पहले कलेक्टिव और टीम गेम खेले जाते थे, but nowadays children like to play individual games. आजकल चिल्ड्रन क्या खेलते हैं, इंडिविजुअल गेम्स खेलते हैं। They prefer to play computer games. वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और स्ट्रेटेजी वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। These games need mental skill and alertness, but the physical activity which was involved in playing games earlier has now reduced to great extent. जो आप गेम खेलते हो फोन में क्या चाहिए, आपकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी होती है, मेंटल स्किल्स चाहिए, बट जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो आप पहले अर्लियर गेम्स में खेलते थे, लाइक खो खो में, कबड्डी में फिजिकल एक्टिविटी होती थी, आजकल फोन्स में या कंप्यूटर्स में गेम खेल के वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। We like to spend our leisure time watching television for hours or going to malls for shopping. हम अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं वॉच करने में टेलीविजन को, शॉपिंग के लिए मॉल्स जाने में। टेलीविजन ऑफर्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। टेलीविजन क्या ऑफर करते हैं, आपको लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दिखाते हैं, लाइक सीरियल्स एंड अदर्स। इट हैज मेनी चैनल्स दैट टेलीकास्ट प्रोग्राम। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो टेलीकास्ट करते हैं प्रोग्राम्स को ऑन नेचर, वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स एंड अदर entertainments like drama, music, etc.
So watching television has become the most common and favorite activity. जो आप टेलीविजन देखते हो बहुत ज्यादा आपकी फेवरेट एक्टिविटी बन गई है और कॉमन भी है, where all the members of the family sit together and enjoy themselves, जिसमें सारे members बैठ जाते हैं एक साथ पूरी फैमिली के और enjoy करते हैं. Now life without television, अगर टेलीविजन नहीं होता तो कैसी लाइफ थी? Many years ago when there were no television, people did not have much awareness. लोगों को awareness नहीं थी. They used to get news either from the radio, newspaper or by word of mouth. या तो उन्हें न्यूज़पेपर से मिलती थी इंफॉर्मेशन या न्यूज या फिर रेडियो से या किसी के बोलने से. They pass their leisure time either by reading books or by playing traditional games. अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, या तो ट्रेडिशनल गेम्स खेल के या फिर रीड करके बुक्स को. Member of a family used to sit together and talk to other for long hours. जो एक साथ फैमिली के मेंबर्स एक साथ बैठते थे और बातें करते थे बहुत बहुत आज तक. Can you imagine your life without television today? क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ टेलीविजन के बिना? How would you pass your leisure time if there would be no television? अगर कोई टेलीविजन नहीं होगा तो आप अपना leisure time कैसे पास करोगे? Just think about that. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.